Welcome back to the lockdown lecture. In the previous lecture, we have discussed about pH for the acids and bases. Today we'll discuss the salt. Salts are produced by the reaction between acid and base. When acid reacts with base, they produces salt and water. This process is called neutralization. In higher standard, this reaction is also known as a titration reaction, जहां पर हम एसिड और बेस को टाइट्रेट करेंगे. एसिड या बेस को एक दूसरे से टाइट्रेट कर सकते हैं by using the indicators like methyl, orange, phenol, phenylene, etc. But ultimately, जो एसिड और बेस का रिएक्शन है वो प्रोड्यूस करता है सॉल्ट एंड वाटर. और आज का हमारा लेक्चर रहेगा फोकस जो करेगा सॉल्ट के ऊपर. व्हाट इज सॉल्ट? सॉल्ट प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस. डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट्स वी आर हैविंग. सॉल्ट का क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो सॉल्ट को हम क्लासिफाई कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट एंड न्यूट्रल सॉल्ट. एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्ट क्या होते हैं? Those salt whose pH value is less than 7 known as acidic salt. Those having pH value greater than 7 they are called basic salt. And those whose pH is equal to 7 they are called neutral salt. So how can we get the acidic salt? How can we get a basic salt and how we can produce a neutral salt? Let's discuss. Salt is produced by a reaction of acid and base. Acid plus base produces salt and water. Salt से जुड़ी हुई हमारी कुछ मेमोरी है हिस्ट्री में. दांडी मार्च, गांधी जी ने जो सॉल्ट के एक्ट को तोड़ने के लिए जो दांडी मार्च परफॉर्म की थी, सब उसके बारे में जानने रखते ही है. दांडी मार्च रिलेटेड टू द सॉल्ट. हम साइंस का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, हिस्ट्री में नहीं जाएंगे. सॉल्ट जो है वो एसिड और बेस के रिएक्शन से प्रोड्यूस होता है. अब इन अ फनी वे अगर मैं कहूं तो सॉल्ट जो है वो बच्चा है और बच्चे के अंदर इनहेरिटेड कैरेक्टर्स होते हैं जो पेरेंट जनरेशन से आते हैं. अब वो पेरेंट जनरेशन से आने वाले जो कैरेक्टर्स है उसमें पेरेंट में मदर और फादर दोनों है. कुछ कैरेक्टर बच्चे में मदर से इनहेरिट हुए होते हैं, कुछ जो है वो फादर से. और जैसे कि बायोलॉजी में हम जानते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स के बारे में. अगर जोड़ी जो है मदर और फादर की, उसमें से दोनों में से कौन सा ट्रेट बच्चे में इनहेरिट होगा वो डिपेंड करता है वो ट्रेट की स्ट्रेंथ के ऊपर. वैसे ही सॉल्ट जो है वो डिपेंड करता है एसिड और बेस की स्ट्रेंथ के ऊपर. फॉर एग्जाम्पल, हाउ कैन वी गेट द एसिडिक सॉल्ट? जो मैंने कहा कि सॉल्ट के 3 कैटेगरी में उसको क्लासिफाई कर सकते हैं: एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट एंड अ न्यूट्रल सॉल्ट. How can we get an acidic salt? An acidic salt is produced by strong acid and weak base. A combination of strong acid and weak base will produce acidic salt. For example, mineral acid like HCl when reacts with weak base like NH4OH, so ammonium hydroxide is a weak base, HCl is a strong acid. The salt produced by them is NH4Cl plus H2O. NH4Cl is an acidic salt. Why NH4Cl is called acidic salt? क्योंकि NH4Cl जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड HCl और वीक बेस NaOH का सॉल्ट है. याद रखो कि सॉल्ट की जो भी स्ट्रेंथ है या एसिडिक कैरेक्टर या बेसिक कैरेक्टर है वो स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है. मतलब मदर और फादर में से जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा बच्चे में वही कैरेक्टर इनहेरिट होते हैं. तो यहां पर HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड और NH4 इज अ वीक बेस. तो जो उससे बनने वाला सॉल्ट है अमोनियम क्लोराइड is a acidic salt because it is a salt of a strong acid and a weak base. A strong acid weak base salt, that's what is called an acidic salt. Similarly, in a basic salt we are having strong base and weak acid.
So if a salt contains strong acid, strong base, weak acid, that means a salt produced from strong base and weak acid is a basic salt. For example, NaOH is a strong base reacting with CH3COOH called acetic acid. Acetic acid is a weak acid. This is a weak acid. H from here, OH from here releases in the form of a H2O, and the salt produced from them is CH3COONA. CH3COONA called sodium acetate. This sodium acetate is a weak acid, strong base salt, and that's why it is basic salt. Basic salt means having pH greater than 7. Acidic salt means having pH less than 7. So simple बात समझ में आ गई होगी आपको कि acidic salt is produced from an acid which is strong in nature and a base should be the weaker one. Basic salt बनाने के लिए आपको strong base चाहिए, weak acid से बनता है. Neutral salt can be produced, but you can use strong acid strong base or a weak acid weak base. मतलब आप strong acid strong base और weak acid weak base के combination से neutral salt बना सकते हैं. For an example, NaOH plus HCl will produce NaCl plus H2O, and NaCl is a neutral salt. तो ये तरीके से जो एसिड बेस के रिएक्शन से प्रोड्यूस होने वाला सॉल्ट है उसको हम 3 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं. एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट एंड न्यूट्रल सॉल्ट. Those salts are acidic, their pH less than 7. Those are having a basic salt characteristic, their pH is greater than 7, and those their pH is 7 because they are neutral salts. तो कोई भी सॉल्ट का जो नेचर है वो डिपेंड करता है उसके एसिड और बेस के कैरेक्टरिस्टिक्स पर. अपोजिट टू दैट, अगर इससे उल्टा कंसीडर करें कि अगर मुझे पता लगाना है कि गिवन सॉल्ट जो है वो कौन से एसिड या कौन से बेस से बना है, या गिवन सॉल्ट जो है उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होगा, वेदर इट इज एन एसिडिक सॉल्ट, वेदर इट इज अ बेसिक सॉल्ट और अ न्यूट्रल सॉल्ट, व्हाट टू डू, क्या कर सकते हैं देखिए. लेकिन उससे पहले जरा ये कॉपी कर लिया जाए फटाफट. Making a list of salt, for example K2SO4, NH4 twice SO4, NaCl, NH4Cl, K2CO3,
द नेचर ऑफ अ गिवन सॉल्ट, ये सॉल्ट के नेचर क्या होंगे, वेदर दे आर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्ट. टू रिकॉग्नाइज द नेचर ऑफ अ गिवन सॉल्ट हमको उनके पेरेंट एसिड या बेस के बारे में जानकारी होनी चाहिए. मतलब ये सॉल्ट कौन से एसिड और बेस को बिलोंग करता है. इसके लिए क्या करना है, जब भी आपको किसी की असलियत जाननी हो ना, तो उसको साफ कर देना पड़ता है, ठीक से देखना पड़ता है, और इसीलिए पानी डाल दो उसके ऊपर. छोटे बच्चे पर पानी डाल दो, उसके मम्मी पापा दौड़ते हुए आएंगे, ए क्या किया मेरे बच्चे पर. सेम यही तरीके से आप जो है ये सॉल्ट पर पानी डाल दो, आपको पता चल जाएगा कि इनके जो माँ बाप है एसिड और बेस वो कौन है. लेट्स सी हाउ. अगर आप K2SO4 को पानी में डिसॉल्व कर देते हो H2O, व्हाट टू डू. ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है कि आपको एसिड और बेस सेपरेट हो जाए, लेकिन ये एक आइडिया है कि जिससे आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि ये कौन से एसिड और बेस का कंपोनेंट है. प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है. अगर मैं K2SO4 को पानी में डिसॉल्व करता हूं, इट कंस्टिट्यूट K प्लस, दो एटम, दो आयन, और SO4 2 माइनस, मतलब आयोनाइजेशन से K प्लस और SO4 2 माइनस होगा. H2O ऑलवेज प्रोड्यूसेस H प्लस एंड OH माइनस. एक्सचेंज कर दो, एक्सचेंज. ये जो पॉजिटिव आयन है उसको नेगेटिव आयन के साथ जोड़ दो, K और OH के कॉम्बिनेशन, ये बन जाएगा KOH. ये बन जाएगा KOH. KOH इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. और ये H और SO4 को जोड़ दो. अब SO4 की वैलेंसी 2 है, इसको बैलेंस करने के लिए आपको 2 चाहिए, तो 2H2O लगा दो. 2OH तो आपको ऑलरेडी चाहिए 2K के लिए. अब SO4 और H का कॉम्बिनेशन, नेगेटिव और पॉजिटिव को जोड़ दो, ये बन जाएगा H और SO4, मतलब H2SO4, क्योंकि SO4 की वैलेंसी 2 होनी चाहिए, तो 2H प्लस आयन हमने जोड़ दिए. इससे हमको ये पता लग गया कि K2SO4 जो है इट्स अ सॉल्ट ऑफ KOH एंड H2SO4. KOH और H2SO4. KOH और H2SO4 दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. मतलब ये है कि ये जो सॉल्ट होगा इट्स अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, दैट मींस इट विल बी न्यूट्रल इन नेचर, न्यूट्रल सॉल्ट. सिमिलरली अमोनियम सल्फेट को अगर हम पानी में डिसॉल्व कर लेते हैं, अमोनियम सल्फेट विल प्रोड्यूस NH4 प्लस एंड SO4 2 माइनस आयन. H2O produces H plus and OH minus. As already mentioned, पॉजिटिव को किसके साथ जोड़ने का, नेगेटिव. ये पॉजिटिव ये नेगेटिव के साथ जोड़ दो, NH4 OH बन जाएगा. दोनों की वैलेंसी सेम है, +1 -1 इसलिए. और SO4 को जोड़ दो H से, तो H और SO4 कंबाइन होकर बना देंगे H2SO4. सो यहां पर ये इंडिकेशन है कि ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्ट है. सल्फ्यूरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, but ammonium hydroxide is a weak base, so it's a salt of strong acid and a weak base. Salt of strong acid, weak base, that means it's an acidic salt. ये जो salt है वो acidic है nature wise. अगर हम आगे बढ़ते हैं तो NaCl, already mentioned, NaCl को पानी में डिसॉल्व करते ही बन जाता है NaOH. HCl is a salt of strong acid, strong base, again it's a neutral in nature. वाटर को पानी में, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड को पानी में डिसॉल्व करो, इट प्रोड्यूसेस NH4 प्लस Cl माइनस H प्लस OH माइनस. पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ो, NH4 और OH कंबाइन होकर बन जाएगा NH4OH. वीक बेस HCl, स्ट्रॉन्ग एसिड. तो ये वीक बेस और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और इसीलिए सॉल्ट जो होगा वो एसिडिक सॉल्ट होगा. फॉर K2CO3 डिसॉल्व्ड इन वाटर, K प्लस CO3 2 minus, H plus OH minus. K combined with OH to produce KOH and H combined with CO3 to produce H2CO3. ये है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक एसिड. कार्बोनिक एसिड इज अ वीक एसिड एंड KOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस. सो इट्स अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड. तो जो भी सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का होता है वो नेचर वाइज है बेसिक सॉल्ट. सो K2CO3 इज अ बेसिक सॉल्ट. तो कोई भी सॉल्ट का जो कैरेक्टरिस्टिक है, वेदर इट इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्ट, उसकी जानकारी हमको मिल सकती है उसके पेरेंट एसिड और बेस से. और पेरेंट एसिड और बेस को हाइड्रोलाइज कर सकते हैं. हाइड्रोलाइज मींस रिएक्टिंग विद वाटर. यू विल गेट द आइडिया फॉर द पेरेंट एसिड एंड बेस. और पेरेंट एसिड बेस से हमको जानकारी मिलती है कि वेदर द गिवन सॉल्ट इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्ट.
तो ये था सॉल्ट के बारे में जानकारी कि सॉल्ट को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया जा सकता है। हमारा जो सॉल्ट है कॉमन सॉल्ट NaCl, ये कॉमन सॉल्ट से जैसे हमारी हिस्ट्री जुड़ी हुई है दांडी मार्च के थ्रू, लेकिन ये कॉमन सॉल्ट जो है वो बहुत सारे दूसरे कंपाउंड के प्रिपरेशन में भी इसका इस्तेमाल होता है। ब्लीचिंग पाउडर NaCl से बनता है हमारा, जो हमारे घरों के अंदर डिसइंफेक्टेंट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा बहुत सारे कंपाउंड ऐसे हैं जो सोडियम क्लोराइड से बनते हैं। सॉल्ट जिनको हम कह सकते हैं लाइक NaCl, NaNO3, दोनों ही सॉल्ट जो है वो सेम फैमिली को बिलोंग करता है। हम कह सकते हैं दे आर सोडियम सॉल्ट बिकॉज दे आर हैविंग सेम पॉजिटिव आयन। सिमिलरली अगर मैं लिखूं कि NaCl और KCl, तो आप ये कह सकते हो इट्स अ सॉल्ट ऑफ अ क्लोराइड फैमिली। सो क्लोराइड सॉल्ट इसको कह सकते हैं बिकॉज दे आर हैविंग सेम नेगेटिव आयन। तो ये तरीके से सॉल्ट को पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के सिमिलरिटी के बेसिस पर हम सोडियम फैमिली सॉल्ट और क्लोराइड फैमिली सॉल्ट के बेसिस पर भी क्लासिफाई कर सकते हैं। बाकी के जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है अबाउट द डिफरेंट सॉल्ट, देयर प्रॉपर्टीज एंड यूजेस विल टेक इन अ नेक्स्ट लेक्चर। आज के लेक्चर में जो हमने डिस्कशन किया है इट्स अबाउट अ सॉल्ट एंड इट्स क्लासिफिकेशन। दैट सॉल्ट को हमने 3 पार्ट में क्लासिफाई किया, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्ट। डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस those which are utilized in the preparation of those salts. आज के लेक्चर के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट लेक्चर विल बी दी लास्ट लेक्चर फॉर दिस चैप्टर। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे एक्सप्लेनेशन के थ्रू, और बाद में इसकी नोट्स वगैरह जो है वो आप कंटिन्यूअसली प्रिपरेशन करते रहो। शॉर्ट टाइम के अंदर एक टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा चैप्टर नंबर 2 के लिए। टिल देन गुड बाय।